ایک خواب تھا، ریاست ہوگی ماں جیسی. مگر یہ خواب آج تک اپنی تعبیر ڈھونڈ رہا ہے. عدل کے ایوانوں میں احتساب کے کیسز جاری، مگر پاکستان میں چند کام کرنا بہت مشکل ہے. ان میں شاید سب سے مشکل کام ہے احتساب کرنا. پاکستان میں تقریباً 70 سال سے احتساب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج تک کسی ایک حکومت کو کامیابی حاصل نہیں. کیونکہ بقول جنرل ریٹائرڈ طارق خان تمام اداروں کے لیڈران اوبلائزڈ، کمپرومائزڈ یا کرپٹ ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ ان ایوری سنگل انسٹیٹیوشن، میں ایک سٹیزن کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ ایک یا کیٹیگری میں آتے ہیں آؤٹ آف 3، اور یہ اس پر لوگوں کو بہت ناراضگی ہوگی. چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ون از اوبلائزڈ، اور ہی از کرپٹ، اور ہی از کمپرومائزڈ. اور جو فورتھ نا کیٹیگری، وہ قائد اعظم تھا، ہی از ڈیڈ اینڈ گون. ٹھیک ہے نا، جو کہ اسٹریٹ فارورڈ، اپرائٹ، آنےسٹ، ڈیڈیکیٹڈ پرسن، وہ نہیں آپ کو ملے گا. یا کسی ذریعے سے آیا ہے لیڈرشپ کے اندر، یا کمپرومائز ہو کر آیا ہے، اور ہی از ڈاؤن رائٹ کرپٹ. اور ان لیڈران کو اچھی طرح یہ علم ہے کہ اگر ایک کا احتساب ہو گیا تو پھر اگلا نمبر ان کا بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر کسی نے بہت زیادہ زور لگا کر احتساب کی کوشش بھی کی تو کرپٹ افراد کے ساتھ ڈیل کر کے احتساب کی کوشش کرنے والے کو ہی مثال بنا دیا گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عوام کو احتساب کی بالکل امید ہے، اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور کو قانون کے دائرے میں لانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا. وزیر اعظم عمران خان احتساب کا نعرہ لے کر 2018 میں اقتدار میں آئے. قانون کے مطابق انصاف کروں گا. پہلے دن کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، مگر پھر خود ہی کابینہ کا اجلاس بلا کر وفاقی وزراء کو یہ بتاتے رہے کہ مجرم نواز شریف کی حالت بہت نازک ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، سو ہمیں اس مجرم کو لندن بھیجنا ہوگا. اب بیٹھ کر پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا، NRO تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے. اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. تحریک انصاف کے اپنے لیڈران کو علم تھا کہ کس طرح سے کیا ہونے جا رہا ہے. نہیں علم تھا تو وزیر اعظم عمران خان کو کہ ان کی ناک کے نیچے ان کو ہی رپورٹ کرنے والے افراد کیا کھیل کھیل رہے ہیں.
मुजरिम नवाज शरीफ फ्रूट की प्लेट सामने सजाए एक खसूसी तैयारे से बरतानिया भेज दिए जाते और वजीर आजम यहाँ अफसोस करते रह जाते। वफाकी वजीर दाखिला फरमाते हैं कि इमरान खान को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शब इमरान खान को समझ नहीं आई। वजीर आजम इमरान खान अब पछताते फिरते हैं कि मैं तो 2 कानून खत्म करने आया था। मैंने खुद एक मुजरिम को जेल से निकालकर बरतानिया पहुंचा दिया। वजीर आजम के मावने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि जेल में नवाज शरीफ से मुलाकातें भी कर चुके थे, वो नवाज शरीफ के खून की रिपोर्ट्स पर सवालात उठा चुके हैं कि शायद किसी जानवर के खून का टेस्ट किया गया। आपके वालिद साहब की तरह किसी जानवर के खून को मुहैया करके उसके प्लेटलेट्स बना के उसकी जाली रिपोर्ट के साथ यहां से बाहर नहीं जाया जाता। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने भी नवाज शरीफ के बाहर जाने पर मुतअद्दिद बार सवालात उठाए। उन्होंने तो मियां शरीफ डॉक्ट्राइन का भी जिक्र किया कि किस तरह नवाज शरीफ के वालिद साहब ने इदारों को कंप्रोमाइज किया था। मियां मोहम्मद शरीफ डॉक्ट्रिन था कि आप जजेस को, जर्नैलों को उनकी मुलाजमत खत्म होने के बाद उनको मराहत दो। मियां साहब कहते हैं जी आप रिटायर हो गए ना, रिटायर हो गए, अब आ जाए मेरे पास, आपको मैं सेनेट में 6 साल के लिए सेनेटर बनाता हूँ। शुदा नवाज कहता है कि जितने आपके कोर कमांडर्स हैं सबके पास एक BMW है जो शरीफ खानदान ने दी हुई है, और वो BMW इस्तेमाल करते हैं बजाय ये फौज से जो कोई छोटा मिली हो। जनाब एतजाज एहसन ने तो उस लैब पर भी सवाल उठाया जिसने नवाज शरीफ के खून की रिपोर्ट्स बनाई थी। अगर आप खड़े हों लाहौर में जेल रोड और कन्नहर के पुल पे तो अरशद आपको एक बहुत बड़ी नई बिल्डिंग नजर आएगी, स्काईस्क्रेपर, और उसके ऊपर जो लैब का नाम लिखा हुआ है, जहाँ इनके सारे होते रहे एग्जामिनेशन, ब्लड पिक्चर पर थी। तो ये भी एक देखने वाली चीज है कि इतनी जल्दी तरक्की उसने कैसे की। ये तो कुछ उन्होंने प्ले किया हुआ लगता है। वजीर आजम इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, मगर मुझे तो उनको पता है कर नहीं सकते, तो इसलिए इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पर डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ कर दें। और ये भी फरमाते रहे कि NRO नहीं दिया जाएगा। मैं आज वादा करता हूं, अल्लाह के सामने करता हूं कि इनको एक आदमी किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। एक आदमी को लेकिन हुआ क्या? तमाम तर दावों और कोशिशों के बावजूद अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम VIP फ्लाइट के जरिए बरतानिया भेजा गया। दिलचस्प बात यह है कि वजीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक ये एक पैकेज डील थी और बाकी के अफराद ने भी बाहर जाना था। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, इसहाक डार है। मगर फिर बकौल इमरान खान नवाज शरीफ की एयरपोर्ट पर तस्वीर देखकर उनको इल्म हुआ कि धोखा हो गया है। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट
अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। दुनिया के किसी और मुल्क में क्या ऐसा हो सकता है? एक इंटरनेशनल स्कैंडल पनामा लीक्स की शक्ल में सामने आए, सुप्रीम कोर्ट में तवील केस चले, जेआईटी बनाई जाए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के नामजद अफसरान इस जेआईटी में शामिल हों, जेआईटी रिपोर्ट पेश करे, इस रिपोर्ट पर नाअहली हो, फिर एहतसाब अदालत में केस चले, जुर्माने हो, सजा हो, और फिर वजीर आजम यानी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ऐसी रिपोर्ट्स पेश की जाएं कि जनाब हालत तशवीशनाक है, बरतानिया जाना जरूरी है। वजीर आजम खुद वुज़रा को बताते रहे कि जनाब मुजरिम शदीद बीमार है, जाने देते और मुजरिम बाहर चला जाए। इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान, जो कि अब कहते हैं कि जाली मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई, उन्होंने इस सब मामले की तहकीक की कोशिश तक ना की। जी हां, एक ऐसी बात जिसके बारे में अब वफाकी वुज़रा बशमूल वजीर आजम फरमाते हैं कि ये जाली मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उनकी तहकीक तक ना की गई, ना ही ये काम किसी इदारे को सौंपा गया, और ना ही हमारी इतलात के मुताबिक वजीर आजम ने कोई कमेटी या कमीशन तश्कील दिया कि वो ये तहकीक करके बताए कि ये जाली मेडिकल रिपोर्ट्स किसके कहने पर किसने तैयार की, और ना ही कोई नाम सामने। हाँ, वजीर आजम के इंतहाई करीबी जराए ये दावा जरूर करते हैं कि वजीर आजम को बखूबी इल्म है कि ये सब किसके कहने पर किया गया, और वजीर आजम ये बात उठा भी चुके हैं, मगर किसने किया ये नाम लेने से वो कासिर। बस ये इल्म है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी, किसने बनाई, कैसे बनाई गई, इस बारे में रावी खामोश है। नवाज शरीफ जिस तरह से बाहर गए ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नवाज शरीफ जेल गए थे, फिर रातों रात डील करके बाहर चले गए थे। Mr. Nawaz Sharif did a deal that got him to go to Saudi Arabia, not complete the sentence for treason and tax evasion. बाद में वापस आए, वो भी डील करके तमाम केसेस खत्म करवा लिए। He did do a deal. He escaped prison and weakened the democratic forces. Mr. Sharif should take responsibility for signing a deal with General Musharraf. That's what he did in 2000. Both of us were offered the same deal. हैरानी की बात मगर ये है कि 20 साल पहले वाली कहानी दोबारा उस शख्स के सामने दोहराई गई जो कहता है कि मैंने 20 साल इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए जुस्तजू की, और फिर चंद रिपोर्टों के सामने क्या धोखा खा गए या एक और खुफिया डील थी। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं और वो हमारी कैबिनेट करती है जो आज तक कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। 20 साल पुराना इस्तेमाल शुदा स्क्रिप्ट किस
कमाल महारत से इस्तेमाल किया है कि जी वाह, और वजीर आजम इमरान खान बिमा 50 वुज़रा और मावनीन इस 20 साल पुराने ड्रामे के पहले ही सीन पर ढेर हो गए। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ ने ड्रामा इतना जानदार तो नहीं था, मगर दाद बनती है राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जिन लोगों ने इस रिपीट टेलीकास्ट में भी ऐसा रंग भरा कि खिलाड़ी मात खा गया। आपको याद तो होगा जो सुलेमान शहबाज ने नवाज शरीफ की बरतानिया जाने की डील फाइनल होने की खुशी में शहबाज द गेम चेंजर वाली ट्वीट की थी। इसी तरह मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि मीट द कोच, और नवाज शरीफ की तस्वीर डाली जाती है, और हम हैं कि पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और कहते रहते हैं कि 90 की दिहाई की सियासत खत्म हो चुकी है, अब ये नया पाकिस्तान है। जी, नया पाकिस्तान पुरानी डीलों के साथ। वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल सही फरमाते हैं कि इस मुल्क में अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग। इस मुल्क में मुर्गी चोर और धनिया चोर सालों जेल में गुजारते हैं, मगर अरबों चोरी करने वाले को सियासी इस्तेकाम, सियासी मुफाहमत, मईशत की बेहतरी या फिर इस डर से कि करप्ट से कहीं काम धंधा बंद ना कर दे, छोड़ दिया जाता है। इस मुल्क में अरबों रुपए जायद मुनाफा कमाना, मुल्क की गरीब, मजलूम और मजबूर आवाम के खून पसीने की कमाई चूसने वाले चोर को सर कहकर पुकारा जाता है। ताकतवर लोग मुल्ज़िमान को मुलाकात के लिए बुलाते हैं, मशवरे करते हैं, और नैब गलती से इन बड़े चोरों को बुलाए कि जनाब चोरी क्यों की, तो ताकतवर लोगों के ताकतवर रिश्तेदार फोन करके नैब के ताकतवर समझे जाने वाले अफसरान को गालियों से नवाजते हैं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का ये आलम है कि जिस केस में सजा होनी हो, उस केस में नैब के वकील को बिला वजह कभी बुखार चढ़ जाता है। वो तो वजीर आजम को शुक्र करना चाहिए कि फोन पर सिर्फ यही कहा गया कि हमें बुखार है। पाकिस्तान में अमीर और ताकतवर अफराद कानून से किस कदर बालातर हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे किस कदर बेबस और लाचार, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तलब किया। मरियम नवाज के हमरा लोगों ने रोड़े और पत्थर मार मार कर नैब लाहौर की इमारत का फुरकस निकाल कर रख दिया। नैब ने फौरी मरियम नवाज की पेशी कैंसिल कर दी। आखिर में हाल ये था कि मरियम नवाज फरमाती थी कि मेरी तो पेशी है, मैंने जाना है, और नैब इल्तिजा कर रहा था कि मैडम आप प्लीज घर रहें। ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। वो दिन और आज का दिन है। नैब ने मरियम नवाज को दोबारा तलब करने की जुर्रत नहीं की। ये होती है असली ताकत।
अगर मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी. Power talks to power. इस मुल्क में ताकतवर कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा लें, जिसमें उन्होंने मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो चलाई थी और नवाज शरीफ को बरी करार दिया. इस वीडियो के बाद मरहूम जज अरशद मलिक ने एक बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया और इस बयान हल्फी में चंद लोगों के नाम बताए और बताया कि किस तरह उनको ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से मुलाकात के लिए ले जाया गया. इस बयान हल्फी में जज अरशद मलिक मरहूम ने उन तमाम अफराद के नाम लिए जिन लोगों ने इस ब्लैकमेलिंग के गंदे खेल में हिस्सा लिया. नासिर भट्ट का भी इस बयान हल्फी में जिक्र था, जो कि वीडियो बनाने के बाद लंदन फरार हो गया. इसी तरह एक और साहब का नाम था जो कि अपनी गाड़ी की डिग्गी में गैर मुल्की करेंसी लेकर जज अरशद मलिक मरहूम के पास आया कि जनाब ये लो यूरो मेरी गाड़ी की डिग्गी में मौजूद हैं और नवाज शरीफ के हक में फैसला दो. ये साहब थे नासिर जंजुआ, पाकिस्तान के मारूफ ठेकेदार. इन साहब की गाड़ियां देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये साहब भी पाकिस्तान की उस अशराफिया में आते हैं जो कानून से बालातर है. चुनाचा फौरी तौर पर FIA ने नासिर जंजुआ को बुलाकर यह फैसला किया कि नहीं, इन साहब का तो कसूर ही नहीं. जज अरशद मलिक साहब इस दुनिया से जा चुके. पाकिस्तान में एहतसाब अदालत के एक जज को ब्लैकमेल किया गया और इस केस में आज तक एक शख्स भी जेल में नहीं. जो गाड़ी में पैसे लेकर गया था वो दंदनाता फिर रहा है और एक जज ब्लैकमेल होकर जिंदगी की बाजी हार कर कब्र में पड़ा है. लेकिन कानून के पास कोई मुजरिम नहीं. कमाल का कानून है. कोई गरीब बंदा जज को एक हर्फ बोल कर दिखा दे, उसका केस लड़ने के लिए वकील ना मिले, मगर डिग्गी में कई मिलियन यूरो हों, FIA आपको दरवाजे तक छोड़ने आती. शायद अदालतों को जज की ब्लैकमेलिंग तौहीन अदालत नहीं लगती. जज साहिबान भी कहते होंगे कोई नहीं, ये तो शक्ल से ही शरीफ लगता है, क्या हो गया अगर हमारे ब्रदर जज को थोड़ा सा ब्लैकमेल कर लिया. दिल बड़ा करना चाहिए, मगर ये दिल उस गरीब मुर्गी चोर, उस गरीब धनिया चोर के लिए बड़ा नहीं होता जो जेल में पड़ा सड़ रहा होता है. वहां कानून की हुक्मरानी याद आ जाती है. शायद इसीलिए दुनिया में हमारे इंसाफ के निजाम को आखिरी नंबरों पर रखा जाता है. ये जुडिशरी जिसको मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स के हवाले से नीचे की जो नंबर है उसमें 130 में 126 नंबर पे. सिर्फ यही नहीं, जो बात एतजाज एहसन ने मियां नवाज शरीफ के हवाले से की, वही बात एक पाकिस्तानी मुसन्निफ ने भी की थी कि किस तरह नवाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी जर्नैलों को ऑब्लाइज और करप्ट किया करते थे और किस तरह एक आर्मी चीफ को BMW की चाबी थमा दी जाती थी कि जनाब रखें. इसने आर्मी चीफ आसिफ नवाज को BMW की चाबियां रिश्वत देने के लिए मरी के गवर्नर हाउस में दी. अगर पैसा और ताकत हो तो फिर
ऐसा होता है। अदलिया को भी शरीफ सिस्टम ने इसी तरह कंप्रोमाइज और कुछ को ऑब्लाइज की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने खुद मीडिया पर आकर बताया कि किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज उनके ही खिलाफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया। मैं चीफ जस्टिस था, उसमें बदकिस्मती थे हमारे जजेस जो हैं, दे वर ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। पैसे लिए थे उन्होंने? लिए थे या नहीं लिए थे वो तो अल्लाह जाने, वो जाने, लेकिन ये तो सारी बातें अखबारों में आई थी। ब्रीफ केस लेके गए थे, सूट केस लेके गए थे। इसी तरह एतजाज एहसन भी फरमाते हैं कि वो हैरान हैं कि मरियम नवाज खुलेआम फरमाती हैं कि उनके पास वीडियोस हैं, मगर अदलिया इज टू काइंड। वो कहती हैं कि मेरे पास और बहुत सबूत है। सबूत किसके हैं? लोगों को ब्लैकमेल करने के। बाय विथहोल्डिंग दैट एविडेंस यू आर कमिटिंग अ क्राइम। मैं तो हैरान हूँ, जजों के सामने पेश हो रही हैं और जजों को सामने पेश हो रही है, जज एक नहीं कहता कि भाई वो मुझे दे दे, सरेंडर दो टेप्स एंड दैट रिकॉर्ड हियर नाउ। अभी यू हैव प्रूफ ऑफ क्राइम, यू हैव एविडेंस ऑफ क्राइम, आप नहीं रिटेन कर सकते। और अगर आप रखती हैं तो इसका मतलब है आप फर्दर क्रिमिनलिटी करना चाहती है, को ब्लैकमेल करना चाहती है। किसको करना चाहती है? किसी जज को, किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को, किसको? किसी जज ने उनसे मांगे ही है। मैं तो हैरान हूँ। पहले दिन मांगने चाहिए थे कि आपने ये बयान दिया है, आप सारे पेश कर। इनके साथ बंदी होती है और ये बिगड़े हुए बच्चे हैं। सिर्फ यही नहीं, मीडिया को भी ऑब्लाइज्ड, कंप्रोमाइज्ड और करप्ट किया गया। एक मखसूस मीडिया ग्रुप तो इस हद तक चला गया कि पहले खुद ही क्रेडिट लिया कि हमने पनामा की खबर ब्रेक की और फिर उस वक्त के बाद से नवाज शरीफ के दिफा में मसरूफ रहे। कभी राना शमीन का बयान हल्फी छापा जाता है तो कभी दूसरे के जरिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जाली ऑडियो चलाई जाती है, जो कि ARY ने फोरेंसिक करवाकर झूठी साबित कर दी। अब तो मरियम नवाज की लीक हो जाने वाली ऑडियोज ने यह राज भी खोल दिया कि चंद मीडिया ग्रुप ये सब पैसे के लिए करते रहे, क्योंकि सेठ का धंधा है। हमारा ये कारोबार है, अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। तो आज माशाल्लाह जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है अल्लाह ताला के फजल से, वो इसलिए है। हमारा ये कारोबार है। जियो से खुद बात की, अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। हमारा ये कारोबार है। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। इमरान खान साहब ने ये शुरू किया था, वो बगैर सबूत के थ्रू आउट बात करते हैं। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। हमारा ये कारोबार है, अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। इश्तिहारात हमारे ग्रुप को ज्यादा मिलते हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरह, जो ज्यादा बड़ा अखबार होगा, ज्यादा TV बड़ा होगा, उसको ज्यादा देगी, रेट भी ज्यादा है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ये है मीडिया का गॉडफादर शकील उर रहमान। क्या ये मीडिया हाउस का ये काम है कि करप्ट खानदान की करप्शन बचाना? हमारा ये कारोबार है। एक मुजरिम को बचाने के लिए पूरा जंग ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है, नैरेटिव बदल रहा है। अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। खुद ही कहता है शकील उर रहमान कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सहावत नहीं जानता, मुझे जिधर से पैसा मिलेगा मैं उधर जाऊंगा। हमारा ये कारोबार है, अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। अब एक बार फिर
नारे मारे जा रहे हैं कि मियां साहब वापसी के लिए तैयार हैं, सब सेट हो गया है। कायदे मोहतरम को इंशाअल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान आएंगे। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। अपने लंगोटे कसे तैयारी करें। यानी कि बस तैयारी पकड़ो। इसी तरह आसिफ जरदारी फरमाते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि फॉर्मूला बना लेते हैं। ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा था फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया। उधर मौलाना फजलुर रहमान कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। कहते हैं जी हम आपको कौमी धारे में ले जाना चाहते। और फिर कहा जाता है कि 90 की दिहाई गुजर चुकी है और अब पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। काश ऐसा हो जाए, मगर फिलहाल तो नए साल में पुरानी डील ही मिलने की उम्मीद और कोशिश है। नाजरीन, अगर आज आपको करप्शन के किसी केस में अचानक ब्रेक लगती नजर आए, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो, कभी दस्तावेजात गुम हो जाएं, जज तब्दील हो जाए या कोई अमीर मुल्जिम बीमार हो जाए, तो जनरल रिटायर्ड तारिक खान के ये अल्फाज याद रखिए। हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन, मैं एक सिटीजन के तौर पर कह रहा हूँ, वो एक या कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ 3, और ये इस पर लोगों को बहुत नाराजगी होगी। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। वन इज ओब्लाइज्ड और ही इज करप्ट और ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और जो फोर्थ ना कैटेगरी, वो कायदे आजम था, ही इज डेड इन कमांड। ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन, वो नहीं आपको मिलेगा। या किसी जरिए से आया है लीडरशिप के अंदर, या कॉम्प्रोमाइज होकर आया है और ही इज डाउन राइट। यानी किसी का ममनून शख्स जिसको कोई फायदा देकर उसको अपना एहसानमंद किया जाए, या किसी की कोई कमजोरी पकड़कर उसको ब्लैकमेल करके या दबाव डालकर अपनी मर्जी चलाई जाए। और करप्ट अफराद का तो आपको इल्म ही है। यहाँ ये बात जरूर जहन में रखें कि करप्ट लोग तो सबके सामने होते हैं, मगर ऑब्लाइज्ड और कंप्रोमाइज अफराद नजर नहीं आते और अंदर ही अंदर कार्रवाइयां डालते रहते। ये ज्यादा खतरनाक होता। सीनियर सियासतदान अनवर बेग ने एक उम्र ताकत के ईवानों में गुजारी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं ठीक होगा। पूरा निजाम A to Z टोटली करप्ट है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, 1 टका नहीं आना, 1 टका यहाँ पाकिस्तान वापस नहीं आया। यहाँ पे अब आपको कोई एक पागल आदमी चाहिए, अ मैडमैन। जितने बड़े बड़े लोग हैं पकड़ के अटक में डाले, उनके आगे लिस्टें रखे कि ये तुम्हारे एहसासे बाहर है, चेक साइन करो और फुटा खाओ, और अदरवाइज सारी जिंदगी यहाँ बैठो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती है, सबका इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है। The system is corrupt from top to bottom, नहीं कर सकते आप। You need a mad man to govern this country. मगर किसी भी ऐसे शख्स को ताकत के ईवानों तक नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि फिर सबको पकड़े जाने का डर होगा। और अगर कोई गलती से पहुंच भी जाए तो उसे एहतसाब नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि फिर सबको खतरा होगा पकड़े जाने का। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सही लिखा था कि काबिले रहम है पाकिस्तानी कौम। काबिले रहम है वो कौम जो मजहब के नाम पर कौमियत हासिल करे, मगर सच्चाई, रास्तबाजी और एहतसाब पर कोई तवज्जो ना दे।
जो कि हर मजहब का लाजमी जुज़ है। काबिल रहम है वो कौम जो जमहूरियत को अपना सियासी निजाम मानती है मगर इसको कतार में लगकर वोट डालने तक महदूद रखती है और जमहूरी इक़्तिदार की नफी करती है। काबिल रहम है वो कौम जो कामयाबी और इक़्तिदार की इज्जत और कदर करती है, जो रूहानी ऊंचाई को नापसंद जबकि दुनियावी दिखावे को पसंद करती है, जो कि मुजरिम को हीरो जाने, शराफत को कमजोरी, दाना को अहमक गर्दाने और बदकार की इज्जत करे। काबिल रहम है वो कौम जिसने आइन का इंतखाब किया जिसमें सियासी मुफादात आइन से बालातर हैं। काबिल रहम है वो कौम जो सबके लिए इंसाफ का तकाजा करे मगर जब इंसाफ उनकी सियासी वफादारी के खिलाफ हो तो मुश्तइल हो जाए। काबिल रहम है वो कौम जिसके घर के खिदमतगार दफ्तर संभालने से पहले हल्फ उठाने को महज एक रस्मी कार्रवाई समझे। काबिल रहम है वो कौम जो हुक्मरानों को मसीहा के तौर पर चुने और फिर उम्मीद रखे कि वो हर कानून अपने मोहसिनों के हक में मोड़ दे। काबिल रहम है वो कौम जिसके लीडर कानून की नाफरमानी में शहादत तलाश करते हैं ना कि कानून की फतह की खातिर कुर्बानी देते हैं, जो कि जुर्म करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। काबिल रहम है वो कौम जिसकी क़ियादत वो लोग करते हैं जो कानून का मजाक उड़ाते हैं मगर ये नहीं जानते कि आखिर फतह कानून की ही होती है। काबिल रहम है वो कौम जो कानून की हुक्मरानी की तहरीक तो चलाती है मगर जब कानून की जद में उनके सरगना आ जाएं तो रोना शुरू कर देती है। काबिल रहम है वो कौम जो कि कानूनी फैसलों को सियासी ऐनक लगाकर देखती है और वकालत में अपनी महारत अदालत के बाहर ज्यादा खुशी से करती है। काबिल रहम है वो कौम जो कि गुरबा और नादार को तो सजा देती है मगर उमरा और ताकतवरों को कानून के सामने लाने से शर्माती है। काबिल रहम है वो कौम जो कानून के सामने बराबरी का मुतालबा तो रखती है मगर इंसाफ का यकसां इतलाक नहीं चाहती। काबिल रहम है वो कौम जो दिल से सोचती है दिमाग से नहीं। बेशक काबिल रहम है वो कौम जो शराफत और कमीनगी में तमीज नहीं कर सकती। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।